آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے احاطے میں موجود ہسٹری میوزیم کے یوم تاسیس پر ایک سیمینار آج رکھا گیا، جہاں ماہرین نے ریسرچ اسکالرز کو مفید مشورے دیے۔ یہ فیسٹیول یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کی جانب سے منعقد کیا گیا، جہاں اس شعبے کے پہلے HOD آجہانی پروفیسر RS گیتے کی یاد میں ان کی خدمات پر سیمینار منعقد کیا گیا، جس کا افتتاح یونیورسٹی کے کارگزار وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شیام شرساٹ کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہسٹری معاشرے میں خوشگوار تبدیلیوں کا ایک ٹول ہے۔ تاریخی واقعات کے سبب معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں اور ان واقعات سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ریسرچ اسکالرز کو چاہیے کہ وہ اپنے تحقیقی مقالہ جات لکھتے وقت ریفرنس اچھی طرح سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد تاریخی واقعات اور سماجی اقدار سے متعلق ان کا ذکر ضرور کریں۔ ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے HOD ڈاکٹر پشپا گائیکواڑ نے پروگرام کا تعارف پیش کیا۔ سیمینار کے پہلے سیشن میں ساوتری بائی پھولے یونیورسٹی پونے کے پروفیسر ڈاکٹر RC داس نے لکنگ ایٹ دا مراٹھاز فرام دا پریفری کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ تاریخ پروفیسر ڈاکٹر PA گولی کی صدارت میں منعقدہ اس سیمینار میں کوپرگاؤں کے ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر چندرکانت ابھنگ نے بھی مراٹھا فوج سے متعلق معلومات فراہم کی۔ اس سیمینار میں پروفیسر ڈاکٹر امیش بلگڑے، پروفیسر ڈاکٹر گیتانجلی بوراڑے، پروفیسر ڈاکٹر بینا سنگر، میوزیم کے نائب صدر کمار بھور، ڈاکٹر امول کلکرنی، ریٹائرڈ پروفیسر غنی پٹیل اور سدھیر لوکھنڈے بھی موجود تھے۔ پروگرام کی کمپیئرنگ ریسرچ اسکالر ڈاکٹر کاماجی ڈک نے کی، جبکہ شکریہ کی رسم پروفیسر ڈاکٹر گیتانجلی بوراڑکر نے ادا کی۔ جغرافیکل ٹرم जे आहे जिथे पाऊस फार कमी आहे, 500 मिलीमीटर पर इयर पेक्षा कमी असेल त्याला आपण arid झोन म्हणतो। 5 to 1000 सेमी arid, 1000 above to 5000 वगैरे त्याला wet humid झोन आपण म्हणतो। आणि ह्या مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا علاج کرنے کے لیے قائم کیا گیا گھاٹی اسپتال ان دنوں صفائی کے معاملے میں خود ہی بیمار دکھائی دے رہا ہے، مگر اس جانب انتظامیہ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ناظرین، گھاٹی دواخانہ علاقہ مراٹھواڑہ کا سب سے بڑا اور سب سے قدیم سرکاری اسپتال ہے، جہاں روزانہ ہزاروں مریض علاج کی غرض سے لائے جاتے ہیں۔ وقفے سے شہر بھر میں مختلف اوکیجنز پر خصوصی صفائی مہم چلائی جاتی ہے۔ حال ہی میں صفائی کے لمبردار سنت گاڑگے بابا کی جینتی کے موقع پر شہر بھر میں مختلف بیداری پروگرامز چلائے گئے۔ اسی طرح G20 کانفرنس کے پیش نظر شہر میں خصوصی صفائی مہم چلائی گئی اور جن علاقوں سے غیر ملکی وفود کا گزر ہونا تھا، ان راستوں کو خوب سے خوب تر بنا کر چمکا دیا گیا۔ وہاں نہ صرف راستوں کے گڑھے بند کیے گئے، بلکہ وہاں کے ڈیوائیڈرز کی بھی مرمت کی گئی، بند اسٹریٹ لائٹس شروع کیے گئے اور جگہ جگہ خوبصورت پینٹنگز بنائی گئی تھیں، مگر علاقہ مراٹھواڑہ کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہاں چاروں طرف غلاظت اور گندگی کے انبار دکھائی پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے علاج کی غرض سے لائے جانے والے مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کے علاوہ خود یہاں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز اور دیگر اسٹاف ممبران کی صحت پر بھی بنائی ہے، اور وہ بھی مختلف وبائی امراض کی زد پر ہیں، جس کی وجہ سے متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے، مگر متعلقہ انتظامیہ کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور تو اور عوامی نمائندے بھی اس معاملے میں خاموش ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی بھی شکوک کے گھیرے میں ہے۔ اورنگ آباد تبدیلی نام کے خلاف 4 مارچ سے ضلع کلکٹر آفس پر زنجیری ہڑتال شروع کی جا رہی ہے۔ یہ اطلاع MP امتیاز جلیل نے دی۔ انہوں نے شہریان سے اپیل کی کہ اس احتجاج میں بڑی تعداد میں شریک ہوں۔ میں اپنے شہر کی پرانی پہچان اورنگ آباد جو ایک ایتہاسک شہر ہے، پورے دنیا بھر میں جگ پرسدھ ہے، اس کا نام ویسے ہی رکھا جانا چاہیے۔ یہ میری سوچ ہے، یہ میری مانگ ہے، اور بہت سارے لوگوں کی بھی مانگ ہے۔ میں پچھلے کچھ دنوں کے اندر بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ امتیاز بھائی کچھ بھی کریے گا لیکن اورنگ آباد کا نام جانے مت دیجیے گا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ بھی آئیے سامنے، تو وہ کسی نہ کسی بات سے کبھی ڈر رہے ہیں، کبھی گھبرا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے ایک سمویدھان جو ہمیں دیا ہے، اس میں مجھے یہ اختیار ہے کہ میں
सरकार के फैसलों का विरोध कर सकता हूं मेरे लोकतंत्र के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए। इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हुए अब हमने फैसला किया है कि सैटरडे के दिन यानी कि परसों से हम लोग जिलाधिकारी दफ्तर के सामने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने हम एक इनडेफिनेट धरना आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। ये किसी राजनीतिक पक्ष के बैनर के अंडर नहीं हो रहा है, यकीनन मेरी राजनीतिक पक्ष जो है उसके बैनर के अंडर भी नहीं हो रहा है। हम सभी लोग जो औरंगाबाद से मोहब्बत करते हैं, औरंगाबाद को पसंद करते हैं, औरंगाबाद की शिनाख्त, उसकी पहचान ख़त्म नहीं करने देना चाहते हैं, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि इस आंदोलन के अंदर शामिल रहिए। आपको आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप खामोश बैठे हैं इसलिए सरकार ये समझती है कि हम जो चाहे वो जनता को कबूल करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में ये है कि औरंगाबाद का नाम रहना चाहिए तो आपको अपनी नाराज़गी जताना पड़ेगा, आपको सड़क के ऊपर उतरना पड़ेगा। और ये सिर्फ हमारे एक आंदोलन की एक शुरुआत है। इनडेफिनेट तरीके से दिन और रात वहाँ पर आंदोलन चलता रहेगा। पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम ये आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए प्रशासन और पुलिस को भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी ये डेमोक्रेटिक राइट है कि हम ये प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं, करना चाहिए और हम करने के लिए जा रहे हैं। तो औरंगाबाद की जनता जो औरंगाबाद का नाम चाहती है, उन्होंने इस आंदोलन के अंदर शामिल होना चाहिए। हमने इसके लिए पहले भी एक औरंगाबाद नामांतर कृति समिति, विरोध कृति समिति हमने बनाई थी। उसी के तहत ये आंदोलन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो जितने भी संगठन है वो संगठन लिखित तौर के उनमें अपना पार्टिसिपेशन या अपना सपोर्ट हमको दे सकते हैं, अपना लेटर एक्सटेंड करके। मैं कुछ इंडस्ट्री के लोगों से मिला था, वो इंडस्ट्री के लोगों ने भी मुझसे अनुरोध किया है कि देखिए इंडस्ट्री के लिए बहुत गलत मैसेज जाता है। CMI जो है उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है औरंगाबाद के ऊपर, दोबारा ये पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। और अगर नाम चेंज हो जाएगा तो वो लोग आज जो बहुत खुश हो रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर तुम्हारा पासपोर्ट है तो तुम्हारा पासपोर्ट बदलना पड़ेगा। सरकार कोई मदद नहीं करने वाली है, लाइन में तुम्हें ही लगना पड़ेगा। आधार कार्ड बदलना पड़ेगा, तुम्हारा लाइसेंस बदलना पड़ेगा, तुम्हारा पैन कार्ड बदलना पड़ेगा, जितने डॉक्यूमेंट्स है ये पूरे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें बदलना पड़ेगा। और सरकार तुम्हारी मदद करने के लिए या तुम्हें पैसा देने के लिए नहीं आएगी। तुम्हें अपना जेब का पैसा खर्च करके लाइन में लग के फिर तमाम वो पूरी प्रक्रिया को मुकम्मल करना होगा। तो इसीलिए ये हम आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। सैटरडे के दिन दोपहर वहाँ पे हम लोग पेंडॉल लगाएंगे और वहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं वो आए, उस आंदोलन के अंदर हमारा साथ दे। 4 मार्च से ये आंदोलन की शुरुआत होने के लिए जा रही है और मुझे मालूम नहीं है कि इनडेफिनेट मतलब कितने दिन और कितने महीनों तक ये चलता रहेगा। मैं तमाम औरंगाबाद की जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके अंदर जाति, धर्म, मज़हब, राजनीतिक पक्ष, आपकी आइडियोलॉजी सबको दरकिनार करते हुए हमारे औरंगाबाद को बचाने के लिए आइए कलेक्टर ऑफिस के सामने किसी भी वक्त आइए और इस मांग को आप पूरी तरीके से हमारा समर्थन देंगे, हमारा साथ देंगे, हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हुकूमत की जानिब से ज़िला औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम तब्दील किए जाने के फैसले के खिलाफ आइंदा 10 मार्च को दोपहर 3 बजे भड़कल गेट से एक मोर्चा डिविजनल कमिश्नरेट पर निकाला जा रहा है। ये इत्तला लोक विकास परिषद के बानी सदर अब्दुल वाहिद ने दी। उन्होंने शहरियान से अपील की कि इस मोर्चे में कसीर तादाद में शरीक हों। नाही, लढा वेगळा कोणताच राहणार नाही आहे। जो कोणी तो कोणत्याही पक्षाचा असो, कोणत्याही जातीचा, धर्माचा असो, देशाला वाचवण्यासाठी, औरंगाबादचं नाव वाचवण्यासाठी, उस्मानाबादचं नाव वाचवण्यासाठी, भारतामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि भारतामध्ये पुन्हा आम्ही सर्व बांधव गुण्यागोविंदाने कसे राहतील याच्यासाठी जे कोणी प्रयत्न करेल आम्ही लोक त्यांच्यासोबत आहे। MIM सोबत आमचे वैचारिक मतभेद आहे, परंतु औरंगाबाद नामांतरच्या मुद्द्यावरून आम्ही सोबत आहोत। आपण लोकांना बोलवण्याचं कारण हेच आहे की जेव्हा देश असो, राज्य असो किंवा जिल्हा असो, जेव्हा शांतता किंवा देशाचं अस्तित्व किंवा कोणत्या एका समाजाचं अस्तित्व धोक्यात येतो, तेव्हा संविधानाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे शस्त्र आम्हाला दिलेलं आहे
ते शस्त्र उचलून आम्हाला योग्य त्या मार्गाने लोकशाही मार्गाने लढावं लागणार आहे. म्हणूनच मी अब्दुल वाहेद लोकविकास परिषद अध्यक्ष मोईन इनामदार साहेब, आमचं आंदोलन आहे 10 मार्च 2023 भडकल गेट ते विभागीय आयुक्त कार्यालय हे इथं आम्ही एक मोर्चा काढणार आहे. आणि हा मोर्चा कोणा धर्माच्या विरोधात नसून आमचा जो हक्क हिनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी या मोर्चामध्ये नॅशनल आंबेडकर काँग्रेस पार्टी आणि अँटी करप्शन अँड क्राईम कंट्रोल वसीमभाई आणि विविध दलित संघटना ते आता आम्हाला पत्र देणार आहे. विविध संघटना विविध पक्षाला सोबत घेऊन आम्ही मोर्चा काढणार आहोत. लोकशाही विचार आंदोलन नामी तंजीम की जानिब से औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम तब्दील किए जाने के खिलाफ एक मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नरेट को दिया गया. इस मेमोरेंडम में वजाहत की गई है कि मज़कूरा तंजीम शहर के तब्दीली नाम से नाराज़ तमाम शहरियान की ताईद व हिमायत करती है. शहर का नाम तब्दील करके छत्रपति संभाजी नगर रख दिए जाने के बाद नाराज़ अवाम व शहरियान ने उनसे राब्ता किया, जिनको नाम की तब्दीली पर सख्त एतराज़ हैं. लिहाजा हम आवाम की तरफ से ज़िला कलेक्टर से दरख्वास्त करते हैं कि चूँकि शहर का नाम तब्दील करना बेफैज़ साबित होगा और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हमारे शहर के लोगों को रोज़गार फराहम किए जाएँ और यहाँ तरक्याती काम करवाए जाएँ, तो ये शहर के लिए फ़ाले नेक साबित होगा. औरंगाबाद का नामांतरण हो गया, हमको नाम चेंज करे, जो नाम रखे हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है. हमको प्रॉब्लम ये है कि भाई जो औरंगजेब का नाम था, जो शहर औरंगाबाद है, जिसको हम पिछले 300 साल से पहचानते, तो हमारी मोदी सरकार से हुकूमत से गुजारिश है कि आप नाम मेहरबानी करके औरंगाबाद रखिए. ये हमारे लोगों के दिल से जुड़ा हुआ नाम है. आपने नाम चेंज करे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नाम को आप वापस से औरंगाबाद कर दीजिए. आज हमारे जो औरंगाबाद से हमारा जो लगाव जुड़ा हुआ है वो पूरी दुनिया में जो है तो औरंगाबाद नाम से मशहूर है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर औरंगाबाद नाम से मशहूर है. और आप आज आके ताबड़तोड़ नाम चेंज कर देंगे तो काफी दिक्कतें आएंगी इसके अंदर. इसलिए मैं औरंगाबाद लोगों से अपील करता हूँ कि आज हम जब लोग यहाँ पे आए हैं तो हमने देखे कि कोई भी यहाँ पे ओसी लेने के वास्ते तैयार नहीं है. तो हमारी आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करो और ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट को जगाओ. मार्च का महीना ख़त्म होने से कबल शहर के रास्तों पर 15 इलेक्ट्रिकल बसेस दौड़ेंगी. ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व स्मार्ट सिटी दफ्तर के CEO डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी है. आया रहे कि शहरियान पिछले 2 बरस से इन इलेक्ट्रिक बसों की राह देख रहे हैं और अब जल्द ही इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होकर 1 साल के आइंदा अरसे में शहर में 35 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी और उनमें से 15 बसें तो इस माह मार्च की 15 तारीख तक ही शहर की सड़कों पर उतार दी जाएंगी. इस तरह की मालूमात डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी है. ये इलेक्ट्रिक बसें सिटी बस शोबे में पिछले 2 साल पहले ही लाई जाने वाली थीं, मगर मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ऐसा हो न सका. बहरकैफ अब ऐन मौसम गर्मा के दौरान मार्च के अवाखिर ही में शहरियान इन AC बसों से फैजियाब हो सकेंगे. अब ये बसें रास्त खरीदी की बजाय इंतजामिया ने किराए पर हासिल करने का फैसला किया है. इस काम के लिए हैदराबाद की कंपनी EV ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड का इंतखाब किया गया है और मज़कूरा 35 बसों को चलाने और उनकी मरम्मत व देखभाल के लिए जल्द ही कंपनी से माहिदा भी कर लिया जाएगा. इस तरह का खुलासा भी डॉक्टर चौधरी ने किया है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने सिडको इलाके में रास्तों पर, फुटपाथ पर और ग्रीन जोन के अहाते में किए गए नाजायज़ कब्ज़ात हटाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई के तहत N5 वकाट चौक, रेणुका माता मंदिर, सिडको N7 में मौजूद पेट्रोल पंप से मुत्तसिल और SBOA चौक इलाके में ग्रीन बेल्ट में किए गए नाजायज़ कब्ज़ात हटा दिए और 10x15 और 15x15 के 8 रास्ते बंद करवाए, जहां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबा बागात की जानिब से हिफाजती जाली लगवाई जाएगी. इसके बाद सिडको कैनाट इलाके में BSNL ऑफिस के सामने रास्ते पर लगाई गई मोमोज की 8 लोहे की हाथ गाड़ियों समेत उनका दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया. इसके अलावा स्क्रैप रिक्शा में चलाई जा रही पंक्चर की दुकान का सामान भी जब्त किया गया. इसी तरह शिश्तिया चौक से MGM जाने वाले रास्ते के किनारे लगाई गई अंडा आमलेट, पाव भाजी, पानी पूरी की गाड़ियों समेत दीगर सामान भी जब्त किए गए. यही नहीं, म्यूनिसिपल अमले ने SBOA चौक से
सिडको कैनाट गार्डन इलाके में रास्ते के किनारे पार्क ट्रैफिक में रखने वाली 4 व्हीलर गाड़ियां भी हटाई। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निक्कम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुये, सविता सोनोने, सिडको ऑफिसर उदयराज चौधरी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर आर्यम सुरासे, बीबी गौली, सैयद जमशीद मदरली, सागर श्रेष्ठ और दीगर अमले ने अंजाम दी। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से इत्तला दी गई है कि शहर की खूबसूरती को दाग लगाने वालों के खिलाफ आइंदा भी इसी तरह से कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लिहाजा शहरियान रास्तों के किनारे, फुटपाथ पर और ग्रीन बेल्ट में अपनी दुकानें न लगाएं। G20 की मसरूफियात के सबब 20 फरवरी को औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का साल 2023-24 का बजट पेश नहीं किया जा सका। अब ये बजट मार्च के आखिरी हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में हालांकि इशारे दिए गए थे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट 20 फरवरी तक पेश कर दिया जाए, ताहम शहर में G20 समिट के कामों और मसरूफियात के सबब ये मुमकिन न हो सका और अब ये बजट इस माह यानी मार्च के आखिरी हफ्ते में पेश किए जाने की कवी उम्मीद है। अयार है कि पिछले वर्षों से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट तकरीबन 2700 करोड़ रुपये तक का रहा है। इंतजामिया के पेश करदा मालियाती तखमीने में स्थायी समिति और फिर जनरल बॉडी में बढ़ोतरी की जाती है, जिसके सबब आमदनी और खर्च के आदाद शुमार में करोड़ों रुपयों का फर्क हो जाता है। दरी असना 2 बरस से कारपोरेशन का कारोबार एडमिनिस्ट्रेटर के तसल्लुत में है, जिसके सबब उम्मीद थी कि इंतजामिया की जानिब से तो भी हकायक पर मबनी तखमीना बजट पेश होगा। ताहम साबिक एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने 2022-23 का अंदाज पत्रक 1728 करोड़ रुपये का पेश किया था, जिसके तहत अक्सर काम तो हो ही नहीं पाए। एएमसी के बजट के लिए मार्च के महीने ही का मुहूर्त निकल रहा है। गुज़िश्ता बजट भी 31 मार्च को पेश किया गया था और अब इस साल भी G20 के बहाने बजट को माह मार्च तक धकेल दिया गया है। अंबेडकर चौक पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब किया जाए और उनकी कौमी यादगार तामीर की जाए। इसी तरह अंबेडकर नगर इलाके में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का तामीरी काम फौरी शुरू करवाया जाए। इन मतलाबात पर साबिक़ कारपोरेटर भारती महेंद्र सोनोने की क़यादत में इलाके के साकिनान ने आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सिडको N7 जलगांव रोड पर मौजूद अंबेडकर नगर चौक में दलित समाज की 10-12 बस्तियां आबाद हैं। इसी तरह यहां दीगर कौम के अफराद भी रिहाइश पजीर हैं। लिहाजा दुनिया वालों के लिए सिंबल ऑफ नॉलेज की हैसियत रखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कद्दावर मुजस्समा यहाँ नस्ब किया जाए और उनकी यादगार कायम की जाए। शहर में बाबा साहब का एक ही कद्दावर मुजस्समा भड़कल गेट पर मौजूद है, जिसकी वजह से उनकी जयंती और महापरिनिर्वाण दिन पर शहर के दीगर इलाकों में रिहाइश पजीर उनके अकीदतमंदों को 10-15 किलोमीटर तक का जुलूस निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से न सिर्फ जुलूस में शामिल अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि शहरियान को भी परेशानियां होती हैं और ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो जाती है। लिहाजा इन मसाइल पर संजीदगी से गौर करते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अंबेडकर चौक इलाके में उनका कद्दावर मुजस्समा नस्ब करवाएं और उनकी कौमी यादगार तामीर करवाई जाए। इसी तरह अंबेडकर नगर इलाके में मुजव्वज़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर फौरी शुरू करवाई जाए। इस हॉस्पिटल के लिए DPDC ने 50 लाख रुपयों का फंड फराहम करवाया है। लिहाजा इन मुतालबात पर साबिक़ कारपोरेटर भारती महेंद्र सोनोने और सोशल वर्कर महेंद्र सोनोने की रहनुमाई में इलाके के साकिनान ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन में भारतीय दलित पैंथर के सदर लक्ष्मण भुतकर, साबिक़ कारपोरेटर रामदासी बोर्डे, यूथ लीडर जितेंद्र सोनोने, सुनीता सोनोने, राहुल साबड़े, रोहित गवई, मिलिंद साबड़े, यू बनकर, संदीप सदाशिवे, विजय भ्यूसने और संतोष गवई के अलावा इलाके के दीगर साकिनान बड़ी तादाद में शामिल थे। आंबेडकर चौकामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा बसवण्यात यावा। 2005 पासून कालकथित माजी नगरसेवक कत्रुजी सोनोने यांची मागणी होती। त्यांनी त्यांच्या स्वच्छ निधीतून आंबेडकर चौक निर्माण केलेला आहे आणि 2005 पासून त्या ठिकाणी आपल्या दवाखान्याची सुद्धा मागणी आहे। नंदकुमार घोडेले साहेब महापौर असताना त्यांनी 5 कोटी रुपये स्मार्ट सिटी अंतर्गत रामदासभाई कदम साहेब असतील, जसवंत साहेब असतील, आता जे बालमंत्री भुमरे साहेब असतील, यांच्या सर्वांच्या प्रयत्नानं त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट मंजूर झालेलं आहे 5 कोटीचं। त्याचंही काम तात्काळ सुरू करण्यात यावं इत्यादी आमच्या मागण्या आहेत। दवाखान्याचं काम
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या नावानं सुरू करण्यात यावं. आंबेडकर नगरचे रोड तात्काळ सुरू करण्यात यावे या मागणीसाठी आज या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या आयुक्तासमोर हे धरणे आंदोलन चालू करण्यात आलेले आहे. जोपर्यंत आमच्या मागण्या हे प्रशासन मान्य करत नाही तोपर्यंत या ठिकाणी हे धरणे आंदोलन चालूच राहील असा इशाराही भारतीय दलित पॅंथर भारतीताई सोनवणे महेंद्र सोनवणे यांच्या माध्यमातून मी या ठिकाणी या प्रशासनाला इशारा देऊ इच्छितो. ठरवलं तर काही होऊ शकतं म्हणून तो दवाखाना ते 50 खाटांचं हॉस्पिटल आता मला वाटतं भव्य आणि दिव्य हॉस्पिटल करता सुद्धा महेंद्र सोनवणे साहेबांची जी मागणी आहे ती सुद्धा लवकरात लवकर पूर्ण त्याच्याकरता सुद्धा व्यक्तीच्या माझ्या पक्षाच्या या मागणीला पाठिंबा आहे. कारण तिथं येणारा माणूस कुठे जाती धर्माचा कोणा पक्षाचा नसणार. त्या ठिकाणी गोरगरिबांकरता ह्या मागण्या आहेत आणि निश्चितच लवकरच मला वाटतं प्रशासन निर्णय घेईल आणि यांच्या या आंदोलनाला या उपोषणाला यश येईल अशी माझी या ठिकाणी भावना आहे. नागालैंड असेंबली इंतखाबात में आरपीआई आठौले ग्रुप के 2 उम्मीदवारों की कामयाबी पर पार्टी के मकामी ओहदेदारान व कारकुनान ने आज भड़कल गेट इलाके में जीत का जश्न मनाया। वाज़ेह है कि नागालैंड असेंबली इंतखाबात में आरपीआई अठोले ग्रुप ने अपने बल पर 8 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारे थे, जिनमें से 2 उम्मीदवार कामयाब हो गए, जिसके सबब आरपीआई अठोले ग्रुप के हौसले बुलंद हो गए हैं और पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने भड़कल गेट पहुंचकर अपने उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाया। नुकत्याच महाराष्ट्रामध्ये 2 पोटनिवडणुका झाल्या, त्याचबरोबर नागालँड, त्याच्यानंतर मेघालय, त्रिपुरा या राज्यामध्ये देखील विधानसभेच्या निवडणुका या ठिकाणी पार पडलेल्या आहेत. नागालँड विधानसभा निवडणुकामध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले या पक्षाच्या वतीनं स्वबळावर या ठिकाणी निवडणूक लढवण्यात आली. पक्षाच्या वतीनं 8 उमेदवारांना त्या ठिकाणी उमेदवारी देण्यात आली होती. ते 8 उमेदवारापैकी 2 उमेदवार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे आठवलेचे स्वबळावर त्या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा पक्ष केवळ महाराष्ट्रापुरता नसता पूर्ण देशामध्ये आठवले साहेबांच्या नेतृत्वाखाली रिपब्लिकन पक्ष काम करतो आहे. तालुका कन्नड़ के नादरपुर इलाके में इंडियन क्लासिकल कथक डांस के एक इदारे की जानिब से माहौलियाती आलूदगी और नशा मुक्ति से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से शजरकारी की गई और एक ड्रामा पेश किया गया। भारत सरकार की सकाफती वजारत के फंड से यहाँ नादरपुर में श्री कृष्ण सांस्कृतिक व ग्रामीण विकास संस्था की जानिब से इंडियन क्लासिकल कथक डांस और हो गई होली घराने की यानी झाली होली घरान्याची के उन्वान पर नाटक पेश किया गया। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज 2 फरवरी को मुनक़िद हुए, जिनका बुनियादी मकसद कदीम और रिवायती फ़नून का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरवीज व इशाअत था। इस प्रोग्राम के ज़रिए शजरकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत और नशा व दीगर नुकसानदेह लतों व आदतों से नजात को वक्त की ज़रूरत बतलाते हुए अवामी बेदारी प्रोग्राम और उसके ज़रिए पानी बचाने जैसे अहम मौज़ूआत पर रहनुमाई की गई। इस प्रोग्राम में नादरपुर, नाचनबेल व अतराफ़ के मवाज़िआत से कसीर तादाद देही साकिनान, मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। वालुज सनती इलाके में मौजूद एक पुट्ठा बनाने वाली कंपनी में आज सुबह अचानक भयानक आग लग गई, जिसमें 50 लाख रुपये मालियत का नुकसान होने का अंदाज़ा है। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक फायर अमले को सुबह 5:57 पर रेस्क्यू कॉल मौसूल हुई, जिस पर चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे की रहनुमाई में फायर ऑफिसर अब्दुल अजीज, ड्यूटी इंचार्ज हरिभाव घुगे, फायर फाइटर्स विक्रम भुईगढ़, सचिन शिंदे, इरफान पठान, अक्षय नागरे, हरीश दूधे और मयूर कुमावत, ड्राइवर्स आकाश हुसे और शंकर दूधे के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे और MIDC के फायर अमले के साथ मिलकर मुसलसल 4 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। पुट्ठा बनाने की ये फैक्ट्री 10,000 स्क्वायर फीट पर तामीर की गई है। इस फैक्ट्री के अहाते में रॉ मटेरियल और तैयार करदा प्रोडक्ट्स के गोदाम भी वहीं मौजूद थे, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे आग बुझाई जाती, आग मजीद जोर पकड़ती जा रही थी। इस हादसे में 50 लाख रुपये मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इब्तदाई तहकीक में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट ही बतलाई गई है। परभनी पुलिस की मुस्तैदी के सबब 24 घंटों के अंदर अगवा करने वाले मुलजिमीन के कब्ज़े से एक 4 साला बच्चे को आज़ाद करवा लिया गया और मुलजिमीन को गिरफ़्तार कर लिया गया है,
जिनमें एक खातून भी शामिल है। इस सिलसिले में परभनी के पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने उम्मीद जताई है कि इस वाक़े के बाद हिरासत में लिए गए मुलजिमीन के जरिए बच्चे पकड़ने और उन्हें ले जाकर फरोख्त कर देने वाले रैकेट का भी पता चल सकता है। अगवा के इस मामले की तफसील यूँ है कि जिला परभनी के पालम ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात फड़ा से 28 फरवरी को एक बच्चे को अगवा कर लिए जाने की वारदात पेश आई तो पुलिस ने फौरी अपने स्क्वाड तैयार किए और इस बच्चे व अगवाकारों की तलाश शुरू की और फिर अंदरूने 24 घंटे नांदेड़ के देगलूर पुलिस थाना हुदूद में तेलंगाना की सरहद के करीब घात लगाकर मुलजिम गोविंद रानाडे के साथ एक कार में मौजूद खातून समेत अगवा शुदा बच्चे को तहवील में ले लिया गया। बाद-ए-अज़ां बच्चा उसके वालिदैन के सिपुर्द कर दिया गया। तफ्तीश के दौरान मज़कूरा मुलजिमीन के जरिए मजीद वारदात पर से पर्दा उठने की तवक्को जिला एसपी राग सुधा ने जतलाई है। नीज कहा है कि छोटे बच्चों की अगवाकार टोली का भी पता चल सकता है। जिला एसपी की मुस्तैदी और पुलिस की इस फौरी कार्रवाई की जिला भर सताइश की जा रही है। पालम पुलिस स्टेशन में मार्च 1 तारीख को एक किडनैपिंग का कंप्लेंट दाखिल हुआ था। फला नाम से एक गांव है पालम पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में। वहां का एक 4 साल की लड़का को अपहरण हुआ है करके गुना दाखिल हुए थे। जब से हमको मालूमात गिरा तब से 12 घंटे के अंदर हम गिरफ्तार किए हैं अक्यूज़्ड को। अक्यूज़्ड 21 साल की गोविंद रानाडे मेनून लड़का है और उनके साथ में एक और लेडी अक्यूज़्ड है जिन्होंने ये दोनों प्लान करके बच्चे को विक्री करण्यासाठी लेके गए थे हैदराबाद को। आणि हम तेलंगाना पुलिस की सहकार्य से और अपने पालम पुलिस स्टेशन की अधिकारी यानी एसडीपीओ पूर्णा की वर्क से इन लोगों को आज सुबह मतलब 12 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है नांदेड़ जुरिस्डिक्शन में। और अभी बच्चे को हमने विद सेफ्टी अपने पेरेंट्स के साथ दे दिया है। प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन में है तो अभी हम फिलहाल कुछ बता नहीं सकते हैं। जो जैसे हमको और मालूमात मिलेगा हम आपको बताएंगे। कांग्रेसी एमएलसी प्रज्ञा सातव पर गुज़िश्ता दिनों हुआ हमला शराब माफियाओं के इशारे पर किया गया था। इस तरह का खुलासा एमएलसी प्रज्ञा सातव ने विधान परिषद में किया है। आया रहे कि जिला हिंगोली में गैर कानूनी शराब का मामला प्रज्ञा ने 2 मरतबा ऐवान असेंबली विधान परिषद में उठाया था। इस तरह का खुलासा करते हुए प्रज्ञा सातव ने बतलाया कि उन पर गुज़िश्ता अरसे किया गया जानलेवा हमला इन्हीं शराब माफिया के कहने पर किया गया था। उन्होंने विधान परिषद को बतलाया कि जिला हिंगोली में जारी गैर कानूनी धंधों को सियासी सरपरस्ती भी हासिल है। इस तरह का इजहार ख्याल करते हुए सातव ने शराब माफिया पर गैर एलानिया तौर पर निशाना भी साधा है। सहजरित्या गावोगावी दारू उपलब्ध होत असल्याने तरुण पिढी आणि त्याच्याबरोबर किशोरवयीन मुलं देखील व्यसनाधीन होत आहेत आणि वाढत्या व्यसनाधीनतेमुळे महिलांवर देखील अत्याचाराचे प्रकार वाढत आहे। कारण संत परंपरा असलेल्या आपल्या या देशामध्ये यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जिथे स्त्रियांची पूजा केली जाते तिथे देवदेवता सुद्धा रम्मान होतात। परंतु अशा या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये स्त्रियांवरती अत्याचार होत आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे। तसेच दारूबरोबरच ठिकठिकाणी गुटखा व जुगार अड्डे पण सर्रासपणे सुरू आहेत। यामुळे अनेक संसार उद्ध्वस्त होत आहेत। बाहेर जिल्ह्यातून दररोज लाखो रुपयांचा गुटखा सुद्धा दररोज इथे अवैधरित्या येत आहे। या संदर्भात यावेळी सुद्धा मी 2 वेळा सभागृहाचे लक्ष वेधले, परंतु जनतेसाठी आवाज उठवल्याचा त्रास मला देखील सहन करावा लागला आणि म्हणूनच दारू माफियांच्या सांगण्यावरून माझ्यावरती हल्ला घडवण्यात आला। परंतु असे कितीही कारस्थान रचले तरी जनतेसाठी माझा आवाज कोणीही दाबू शकणार नाही। कारण मी जिजाऊची लेक आहे, मी अहिल्याची लेक आहे, मी सावित्रीची लेक आहे, मी रमाईची लेक आहे, मी रजिया सुल्तानची लेक आहे। स्टेट वुमेन्स कमीशन की सदर रूपाली चाकनकर ने हुकूमत से सिफारिश की है कि किसी गांव में बाल विवाह होता है तो वहां के अवामी नुमाइंदों का ओहदा कल अदम करार दिया जाए।
गुज़िश्ता रोज रियासती ख़वातीन कमीशन की सदर रूपाली चाकनकर तुलजापुर के दौरे पर आई थीं। इस दौरान चाकनकर से बाल विवाह यानी कमसिनी की शादियां रोकने से मुतालिक तदारुकी इक़दामात के बारे में पूछा गया तो रूपाली चाकनकर ने खुलासा किया कि ख़वातीन कमीशन ने इस सिलसिले में कई तजावीज़ और सिफारिशात पेश की हैं और अब अगर कहीं किसी गाँव में बाल विवाह किया जाता है तो वहाँ के अवामी नुमाइंदों, सरपंच और ओहदेदारान, ग्राम सेवक व पुलिस पार्टी के ओहदों को कलअदम करार देकर उन्हें बर्खास्त कर देने की सिफारिश भी कमीशन की जानिब से किए जाने का खुलासा रूपाली चाकनकर ने किया है। या संदर्भात आम्ही राज्य महिला आयोगाच्या वतीनं महाराष्ट्र शासनाला शिफारस केलेली आहे की बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2008 नुसार बालविवाह करून देणारे दोन्ही कुटुंब, बडजी, मंगल कार्यालय आणि फोटोग्राफर यांच्यावरतीच गुन्हा दाखल होत होता। कायद्याने यामध्ये बदल करावा आणि हा बदल करत असताना या व्यक्तींसोबतच यामध्ये जर एखाद्या ग्रामपंचायतीमध्ये बालविवाह झाला तर त्या ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील यांच्यावरती दोषारोप पत्र सिद्ध झाल्यास त्यांचं पद रद्द करावं अशा पद्धतीची शिफारस राज्य महिला आयोगाच्या वतीनं महाराष्ट्र शासनाला देण्यात आलेली आहे। कारण जोपर्यंत लोकप्रतिनिधी या चळवळीमध्ये सहभागी होत नाहीत तोपर्यंत या अंधश्रद्धेच्या निर्मूलनाचा लढा आपण यशस्वी लढू शकणार नाही। त्याच्यामुळे राज्य महिला आयोगाच्या वतीनं अशी शिफारस राज्य शासनाला पाठवली। जिला हिंगोली के क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने 38 किलो गांजा और एक कार जब्त की है, जिसकी मालियत 15 लाख रुपये बताई जा रही है। जिला हिंगोली के पुलिस सुपरिंटेंडेंट जी श्रीधर और एडिशनल सुपरिंटेंडेंट अर्चना पाटिल ने खुसूसी मुहिम के तहत जिले में जारी गैर कानूनी धंधों की मालूमात हासिल की और फिर मकामी जराइम शाख को इन धंधों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम सादिर किए थे, जिसके बरबिना जराइम शाख के API शिव सांब वाघमागरे की क़यादत में एक खुसूसी दस्ता तश्कील दिया गया था। इसी दौरान खुफिया मालूमात हासिल हुई कि परभनी जिले से 2 मार्च को एक कार में लाद कर गैर कानूनी गांजा ले जाया जा रहा है और मजकूरा कार औंढा नागनाथ के गेस्ट हाउस के सामने खड़ी है। पुलिस ने मंसूबाबंद तरीके से पूरी तैयारियां की और उसके बाद इस सफेद रंग की कार MH12 KN 2160 पर छापा मारा और कार में मौजूद 38 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। इसी तरह इस काम में इस्तेमाल हो रही मजकूरा कार समेत जुमला 14,65,000 की मालियत पुलिस ने जब्त कर ली। हालिया दिनों में की गई ये सबसे बड़ी छापामार कार्रवाई बतलाई जा रही है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।